الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، سامعین کرام، گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر سیدنا حسن ابن علی کی حضرت معاویہ سے صلح تک، یعنی 11 ہجری سے لے کر 41 ہجری تک خلافت راشدہ کے دور کا تذکرہ کیا تھا. آج کی اس نشست میں واقعہ کربلا تک لے جانے والی کڑیاں اور سانحہ کربلا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بات کرنے کی، آپ حضرات کو سننے کی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی. سن 41 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تخت نشین ہوئے، 20 سال تک حکومت کی، 41 سے لے کر 60 ہجری تک حکومت کی. حکومت میں وہ پہلا سا رنگ تو نہیں تھا جو آپ سے پہلے خلفاء کا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کے دور میں ظلم و ستم تھا، معاذ اللہ انصاف نہیں تھا. ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کی خلافت بعد میں آنے والوں سے بہتر تھی، پہلوں کی بنسبت کم تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو جب 14 سال ہو گئے، یعنی آپ کی عمر مبارک 54 سال ہو چکی، 54 ہجری، اسلام کی 54 ہجری شروع ہو چکی تھی. اس وقت آپ نے یہ سوچا کہ مجھے اب کوئی ولی عہد بنا لینا چاہیے. ولی عہد کس لیے بنانا ہے کہ پہلے جس طرح جنگ جمل اور صفین ہو گئی آپس کی خانہ جنگی سے، اب کہیں پھر خانہ جنگی نہ ہو جائے. مجھے پہلے سے ہی مسلمانوں کا کوئی خلیفہ چن لینا چاہیے. اس کے لیے آپ کی نظر اپنے بیٹے یزید پر پڑی کہ یزید کو میں اپنا خلیفہ بنا دیتا ہوں. ایک بات میرے دوستو اچھی طرح یاد رکھیں، یزید کے سلسلے میں جتنے فسق و فجور اور شراب پینے اور گناہوں کا تذکرہ آتا ہے، یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد روایات سے ثابت ہے. آپ کی زندگی میں یزید کا ایسا کوئی معاملہ ثابت نہیں. اس لیے آپ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح باقی صحابہ کے بیٹے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اور ملک شام میں میری حکومت تھی، عراق میں حضرت علی کی حکومت تھی، ملک شام کی حکومت والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو خلافت کے لیے قبول نہیں کریں گے.
اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کو چنا، لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بے شک آپ کی نیت اچھی تھی کہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو، امت میں لڑائی پیدا نہ ہو، لیکن حق بات یہ تھی کہ حسین ابن علی جیسوں کے ہوتے ہوئے یزید خلافت کا حقدار نہیں تھا، اس لیے انہی کو بنانا چاہیے تھا، افضل بھی وہی تھے، اور بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے، یا یوں کرتے جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اکابرین مدینہ، یاد رکھنا صدیق اکبر دنیا سے جا چکے تھے، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، حضرت عمر فاروق دنیا سے جا چکے تھے، آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر موجود تھے، حضرت علی کے بیٹے حسین ابن علی موجود تھے، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر موجود تھے، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس موجود تھے۔ ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی ہستیوں کے ہوتے ہوئے ایک یزید کو تخت نشین بنانا یہ بہتر نہیں تھا، یہ امت کے حق میں درست نہیں تھا، اس سے امت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ حضرات جتنے میں نے نام لیے سب مدینے میں تھے، یزید کے تخت ملک شام میں۔ یہ باتیں سب یاد رہنی چاہیے کہ مسلمانوں کا دارالخلافہ پہلے مدینہ منورہ ہوتا تھا، حضرت علی کے زمانے میں کوفہ بنا، حضرت معاویہ کے زمانے میں دمشق شام بنا، یہ شام میں تھے، یہ مدینہ منورہ میں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے، ان حضرات کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اختلاف کس بات کا تھا؟ انہوں نے کہا دیکھو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، امت نے خلیفہ چنا۔ صدیق اکبر دنیا سے گئے، اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، عمر فاروق دنیا سے گئے، اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، لہذا پہلوں کی سنت پہ چلنا چاہیے، جس طرح انہوں نے اپنوں کو نہیں بنایا آپ بھی نہ بنائیں، اگر آپ نے بنا دیا امت میں وراثت چل جائے گی، موروثیت چل جائے گی، لہذا ہم، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ تو کیسر و کسرا کی سنت ہے، ایک کیسر جائے دوسرا کیسر آ جائے، ایک کسرا چلا جائے دوسرا کسرا آ جائے، ہم یزید کی حکومت کو قبول نہیں کریں۔ آپ نے بہرحال دنیا سے جاتے ہوئے پھر بھی امت کی وحدت کو مد نظر رکھتے ہوئے یزید طے کر دیا۔ یزید جب تخت پر آیا اور آپ نے آخری وقت میں یزید کو نصیحتیں کی تھی، اے یزید ہو سکتا ہے تیرا اہل بیت سے سامنا ہو، اہل بیت کے معاملے میں سختی نہ کرنا، ان کے بڑوں کو ان کی عزت کا خیال رکھنا، جب تمہیں لوگوں سے تیرے بارے میں کوئی باتیں پہنچے تو صبر کا مظاہرہ کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرنا۔ یہ ساری وصیتیں کر کے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، یزید تخت پر آیا اور اپنے ابا جان کی ساری نصیحتیں بلا کے آئے۔ سن 61 ہجری میں میرے دوستوں میں کوشش کروں گا، آج ہمارے ہاں کچھ لوگ تو کربلا کا واقعہ بیان کریں گے اس انداز میں کہ معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کربلا ہے ہی نہیں، یہ افسانہ ہے، یہ من گڑت قصہ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کربلا کو اتنا ہی چڑھا دیتے ہیں کہ ثابت شدہ باتیں بھی جو ہے ان کو بھی غلط انداز سے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے صحیح بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ تخت پر آیا، اس نے اپنا ایک قاصد روانہ کیا، میرے پاس وقت کم، واقعہ بہت لمبا ہے۔ اس نے مدینہ المنورہ میں اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ جا کے مدینہ منورہ کے گورنر ولید ابن عتبہ بن ابی سفیان سے کہو کہ ان حضرات سے حضرت معاویہ کی وفات کی خبر بھی دو اور زبردستی ان سے بیعت لو۔ حالانکہ یہ طریقہ نہیں تھا۔ حضرت علی کے زمانے میں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی آپ نے کچھ نہیں کہا، حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت نہیں کی انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا،
لیکن یزید نے کہا نہیں، ان سے زبردستی بیعت لی جائے۔ ولید ابن عتبہ بن ابی سفیان نے رات کے وقت جب حضرت حسین ابن علی کو بلانے کے لیے، عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا، یہ دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے، یہ سمجھ گئے کہ رات کے وقت میں خلیفہ کا بلانا کوئی اچھی خبر نہیں ہو سکتی۔ حضرت حسین فوراً کہنے لگے میرا علم یہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ فوت ہو چکے ہیں، یزید تخت پر آ چکا ہے اور ہمیں اس وقت خلافت بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ آپ گئے اور جا کے آپ نے ولید ابن عتبہ سے بات کی۔ بہرحال یہ نرم انسان تھا، آپ نے اس کے سامنے کہا ولید بات یہ ہے کہ یہ رات کے وقت چھپ چھپا کے چوروں کی طرح بیعت لینے کا کیا فائدہ ہے؟ صبح دن دہاڑے بیعت لینا ساری دنیا کے سامنے۔ اس کے دل میں بات آ گئی کہ بات تو ٹھیک ہے، صبح کے وقت اب یہ انتظار میں تھے کہ یہ حضرات میرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ ان حضرات نے مشورہ کر کے مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کا سفر کیا۔ میرے دوستو حالانکہ یاد رکھنا مدینہ سے کربلا نزدیک ہے، مدینہ سے کوفہ نزدیک ہے، لیکن انہوں نے مدینہ سے کوفہ جانے کی بجائے مدینہ سے مکہ المکرمہ کا سفر کیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ حضرات یہ سمجھتے تھے کہ مکہ المکرمہ حرم ہے، یہاں لوگ قتل و قتال کرنے سے باز آئیں گے۔ نمبر دو، وہاں جا کے سوچیں گے ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہرحال مختصر انداز میں یہ حضرات مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں 4 مہینے 4 دن قیام کیا آپ نے۔ 27 رجب کو مدینہ المنورہ سے نکلے، 4 شعبان 61 ہجری کو مکہ المکرمہ پہنچے۔ شعبان اور رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے کوفہ چلے جانا چاہیے، کہ کوفہ کے لوگ خطوط لکھ رہے، بڑے بڑے قاصد بھیج رہے کہ آئیے جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، ہم یزید کی خلافت کو قبول نہیں کرتے۔ اب میرے دوستو یاد رکھنا عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر صدیق اکبر کے نواسے ہیں، حسین ابن علی رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ جس طرح سفر ہجرت میں اللہ کے نبی اور ابو بکر ساتھ تھے، یہاں بھی دونوں کے نواسے ساتھ تھے، ہجرت پہ اکٹھے نکلے۔ موقف دونوں کا ایک تھا کہ یزید کی حکومت وراثت نہیں چلنے دیں گے، لیکن مکہ المکرمہ میں پہنچ کر اتنا اختلاف ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا موقف تھا ہمیں حرم میں رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے، آپ کا موقف یہ تھا کہ نہیں ہمیں کوفہ میں جا کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت حسین، اچھا اللہ کی شان، باتیں دونوں کی ٹھیک، باتیں دونوں کی ٹھیک، کیسے ٹھیک تھی؟ حضرت حسین کہنے لگے کہ مجھے کوفہ چلے جانا چاہیے، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ مکے پہ بھی چڑھائی کریں گے، مکے کے حرم کو پامال کر دیں گے، میں اپنی جان تو گوا دینا بہتر سمجھتا ہوں، پر مکہ المکرمہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ آپ دیکھیں اللہ کی شان، ایسا ہوا کہ حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے بعد انہی ظالموں نے مکہ المکرمہ پہ چڑھائی کی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا موقف یہ تھا کہ آپ کوفہ میں نہ جائیں، کوفہ کے لوگ غدار ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ غداری کی، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ غداری کی، آپ کے ساتھ بھی غداری کریں گے۔ اور یہ بھی سچ ثابت ہوا کہ کوفے والوں نے غداری کی، دونوں کا موقف صحیح ثابت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں ٹھہر گئے، حضرت حسین ابن علی نے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جانے سے پہلے آپ نے ایک ترتیب سوچی کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، مسلم بن عقیل بن ابی طالب کو بھیجتا ہوں، یہ جا کے وہاں کے حالات معلوم کریں۔ آپ نے ایک خط لکھ دیا کہ بھئی اگر تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہو، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، میں سمجھ جاؤں گا کہ تم مجھے بلانا چاہتے ہو۔
हजरत मुस्लिम बिन अकील जब कूफा में गए, लोगों को पता चला कि ओ हुसैन इब्ने अली तशरीफ ला रहे हैं, नवासे रसूलुल्लाह आ रहे हैं। कूफे के लोग गलियों में निकल आए, इस्तकबाल किया, सीने से लगाया। देखना मुनाफिकत कितनी बड़ी होती है। सर पे उठाया, घर ले गए। पहले दिन 12,000 अफराद ने बैत की। 12,000। हम आपके लिए मरने को तैयार हैं, हम आपकी खातिर कुर्बान होने को तैयार हैं। उस वक़्त कूफे के जो निगरान थे, गवर्नर थे, नुअमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे। वो सहाबी थे, उनके दिल में खानवाते नबूवत का एहतराम था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत करते हैं, मुझे कुछ घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन कूफे के कुछ शरारत पसंद लोगों ने नमक मिर्च लगाकर यह सारा हाल लिखकर यजीद के दरबार में मुल्क शाम भेजा कि आपका गवर्नर नुअमान बिन बशीर बुज़दिल कमजोर आदमी है, इसने तो आपका मुल्क आपके हाथों से निकलवा देने। अगर खैर चाहते हो तो कोई सख्त आदमी भेजो। इधर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जब देखा कि लोग तो बड़ी इज्जत करते हैं, आपने एक खत लिखा। यह खत 4-5 दिन के सफर के बाद जब मक्कतुल मुकर्रमा जाके पहुंचा है, और आपने देखा कि कूफे वाले तो मेरे इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। 12,000 के करीब अफराद बैत कर चुके हैं। आप पक्का इरादा करके निकल पड़े। रस्ते में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मुलाकात हो गई। आपने फरमाया, ए हुसैन, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, कूफे की सरजमी पे न जाना। उन्होंने अभी तक अपने हुक्मरान नहीं निकाले, अभी तक उनको टैक्स देते हैं। अगर तूने जाना भी है तो अहले बैत को साथ लेके न जाना। मुझे डर है कि जिस तरह उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु को घर वालों के सामने शहीद कर दिया गया, कहीं आपको भी शहीद न कर दिया जाए। आपने रोका, लेकिन जवाब में एक ही बात आपने फरमाई। आपने फरमाया, लअन अक़्तुल कदा व कदा, मैं इधर उधर शहीद कर दिया जाऊं, ये मुझे इससे बेहतर है कि मैं हरम में शहीद किया जाऊं, जिससे हरम की हुर्मत पामाल हो जाए। ये थी बैतुल्लाह की इज्जत और अजमत। हजरत उस्मान गनी आखिर तक शहीद हो गए, लेकिन आपने फरमाया, लोगों, मेरी खातिर तलवार नहीं निकालनी, कहीं मेरे नबी की शहर की हुर्मत पामाल ना हो जाए। मैं इधर उधर शहीद हो जाऊं, ये बेहतर है कि मैं यहां शहीद किया जाऊं। अब मैं जाऊंगा। बड़े बड़े सहाबा आए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आए, उन्होंने तो बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा, ए हुसैन इब्ने अली, मैं तो ये समझता हूं कि अल्लाह ने फरिश्ता भेज के अपने नबी को इख्तियार दिया था कि ए नबी जी, दुनिया चुन लें या आखिरत चुन लें। मेरे नबी ने आखिरत चुनी थी। अल्लाह दुनिया का इक्तदार अहले बैत को नहीं देंगे। ये जब इक्तदार पे अल्लाह ने निज़ाम दुनिया इन्हीं से शुरू किया है। जिस दिन आप ये समझना कि कोई अहले बैत तख्त पे आ चुका है, उस दिन दुनिया का इख्तिताम हो जाए। पूरी हिस्ट्री इससे बड़ी पड़ी है, सिर्फ करबला नहीं, कि जब जब अहले बैत खिलाफत पे आने लगे तो ऐसे हालात आए अल्लाह की तरफ से, नाकाबिले बयान हुए। बहरहाल आपने अपना सफर जारी किया, अभी तक सफर चल रहे, और उधर कूफा के हालात आ चुके हैं कि कूफा के हालात बेहतरीन हैं। जैसे ही यजीद के दरबार में पैगाम पहुंचा कि कूफा का निजाम बदलो, गवर्नर ठीक नहीं, उसने एक बंदा चुना जिसका नाम था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। नाम याद करने, यजीद और है, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बसरा का गवर्नर था। इन्होंने सोचा कि ये बंदा बड़ी सख्त तबीयत का है, ये फौजी मशीनरी के अंदर ढला हुआ इंसान है, ये किसी पे रहम खाने वाला नहीं है। उसको कहा कि चल, आज के बाद बसरा की हुकूमत भी तेरे पास है, कूफा की हुकूमत भी तेरे पास है, पूरे इराक का कंट्रोल तेरे पास है। प्यार से समझाना, जो तेरे मुकाबले में आए उसको कत्ल कर देना। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जैसा सख्त और बदमाश आदमी जब ये कूफे पे मुसल्लत हुआ,
इसने जाते ही सबसे पहले नौमान बिन बशीर सहाबी को हटाया और इसने कूफे की दीवार पे चढ़ के कहा, लोगों मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दो, अगर तुमने मेरे हवाले ना किया मैं तुम्हारी गर्दनें उड़ा दूंगा। वो 12,000 अफराद जिन्होंने आपके हाथ पे बैत की थी अब इधर उधर भाग रहे। सबसे पहले हानी बिन उर्वा जिनके घर में आप ठहरे हुए थे उसको उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने गिरफ्तार किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील उनको छुड़ाने के लिए 4,000 अफराद का काफिला लेकर जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के महल की तरफ गए, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अपने महल की छत पे खड़े होकर उनको धमकियां लगाई। अब 2 इधर गए, 2 उधर गए, 4 उधर गए, 6 उधर गए। शाम का जब वक़्त हुआ तो ये दुनिया ने देखा और कूफे की सरजमीन ने गद्दारी का ये निज़ाम देखा कि 12,000 बैत करने वाले, 4,000 गलियों में तलवार लेके निकलने वाले, अभी ये हाल है कि मुस्लिम बिन अकील तने तनहा कूफा की गलियों में खड़े हुए, कोई साथ देने वाला न था, कोई पानी पिलाने वाला न था। आप गलियों में घूमते रहे, एक औरत के घर के सामने बैठ गए, औरत ने पानी पिलाया, पिलाने के बाद कहने लगी चले जाओ अपने घर, बैठे सुनते रहे। फिर कहा, फिर तीसरी दफा जब कहा कि अपने घर क्यों नहीं जाते तो आप दर्द से कहने लगे मुस्लिम बिन अकील का तो कोई घर ही नहीं, मुस्लिम बिन अकील का कोई रिश्तेदार नहीं, मैं कहाँ जाऊं। औरत घर के अंदर ले गई, कमरे में छुपा दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का ऐलान था जिस घर में मुस्लिम बिन अकील मिले मैं उन घर वालों को छोड़ूंगा नहीं। अब औरत ने कमरे में छुपा रखा था, लेकिन इस औरत का एक बेटा था, उसका नाम बिलाल था। ये बिलाल उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का टाउट था। इसने जब घर आके देखा कि मेरी माँ कमरे में किसी को रोटी देने के लिए जाती है, इसने कहा माँ कौन है? इसने कहा पुत्र किसी को बताना नहीं, ये मुस्लिम बिन अकील है। उसने मुस्लिम बिन अकील का नाम सुनते ही इनाम लेने के लालच की खातिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के गवर्नर के पास पहुंच गया और जाके बताया कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में छुपे हुए। अब देखो अल्लाह की शान, माँ का जज्बा देखो, बेटे का जज्बा देखो। माँ अहले बैत को बचाने के लिए, बेटा अहले बैत को शहीद करवाने के लिए वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उस घर पे मुकाबले के लिए चढ़ाई की। तारीख ने यह वक्त देखा कि 70 सिपाहियों ने तलवारें लेकर जब मुस्लिम बिन अकील पे हमला किया, अल्लाह ने ऐसी शुजाअत दी थी कि हजरत मुस्लिम बिन अकील ने 70 का मुंह फेर के रख दिया। वो 70 के 70 वापस पलट गए। उन्होंने सोच लिया कि अहले बैत इस तरह पकड़े नहीं जाएंगे, इनको धोखा देना चाहिए। उन्होंने कहा अगर आप तलवार हमारे हवाले कर दो हम आपको खैर वाफियत से वापस कर देंगे, हजरत हुसैन तक पैगाम पहुंचा देंगे। आपने अपने आप को सुपुर्द कर दिए। जैसे ही आपको पकड़ा, तलवार आपसे छीन ली, महल के अंदर आपको ले गए। रास्ते में जाते हुए आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का सिपाही मोहम्मद बिन अशअस कहने लगा इस तरह के उल्टे काम करके रोया नहीं करते। आपने फरमाया मैं अपने कामों पे नहीं रो रहा, मैं इस बात पे रो रहा हूं कि मेरे खत की वजह से कहीं हुसैन इब्ने अली मक्का से निकल ना आए। मेरा खत जा चुका है, मैं अहले बैत के सिलसिले में रो रहा हूं। अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं तुम में से कोई मेरा पैगाम पहुंचा दे हजरत हुसैन तक कि कूफा में ना आना, हालात बदल चुके। बहरहाल ये जालिम आदमी ने, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील को अपने महल की छत पे ले जाकर, हानी बिन उर्वा को ले जाकर छत के ऊपर से गर्दन उतार के आपके जसद अतहर को छत से नीचे फेंक दिया, मजमे के अंदर फेंक दिया, ताकि पूरे कूफा पे रोब छा जाए कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की जो नाफरमानी करेगा मैं उसका यही हाल करूंगा जो मैंने मुस्लिम बिन अकील के साथ किया, जो मैंने हानी बिन उर्वा के साथ किया। इधर हजरत हुसैनी काफिला चल रहा है, इराक के करीब पहुंच गए। इराक की सरहद के करीब पहुंचकर आपको ये इतला मिली
کہ मुस्लिम बिन अकील तो शहीद कर दिए गए। आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और सब सहाबा को इकट्ठे करके कहने लगे अब तो हालात बदल चुके हैं, हम तो कूफा इराक इसलिए जा रहे थे कि ताकि वहां के लोगों को समझाएं, अब ऐसा करते वापस जाने का सोचते या मुल्क शाम की तरफ चलते। तो वहां हजरत मुस्लिम बिन अकील के घर वाले कहने लगे कि हजरत अब वापसी का सफर नहीं है, मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद हम अपनी जानों के नजराने पेश कर देंगे। बाजों ने यूं कहा कि आपके पास तो खत आए थे, आपकी बात और है, मुस्लिम बिन अकील की बात और है, शायद आप जाएंगे तो आपको देख के फिर कूफे वाले मुसलमान हो जाए, आपको देख के हो सकते है फर्मा बरदारी की जिंदगी पे आ जाए, आप चले। आप जब थोड़ा सा आगे बढ़े, इराक की बाउंड्री पर जो मुल्क शाम की तरफ रास्ता निकलते है, वहां यजीद का एक सिपा सालार हुर बिन यजीद था। हुर बिन यजीद की आपसे मुलाकात हुई, ये बड़ा बेहतरीन सिपा सालार था। हुर बिन यजीद कहने लगा मैं आपसे ये कहता हूं कि कूफे की तरफ न जाएं, कूफे के अंदर खैर, हालांकि यजीद का सिपाही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का सिपाही है, यहां ना आए। देखें इस पूरे वाक़े में गौर करते चले जाना कि किसी के मुकद्दर में अल्लाह बदबख्ती लिखते हैं, किसी के मुकद्दर में अल्लाह इज्जत लिखते हैं, किसी को अल्लाह इज्जतों से और शहादतों से माला माल करते हैं, किसी को अल्लाह कुफर और जलालत की मौत दे देते हैं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का सिपाही होकर दिल में खानवाते नबूवत की मोहब्बत है, आप कूफे के अंदर ना जाएं, आप यहां से हट जाएं। आपने कहा चलो मुल्क शाम चलता हूं, यजीद से जाके मुज़ाकरात करते हैं, बात करते हैं। आपने मुल्क शाम का रास्ता लिया, करबला कूफा से इराक से 72 किलोमीटर के फासले पर मुल्क शाम के रास्ते पर है। आप मुल्क शाम की तरफ जा रहे, लोग कहते हैं जी ये बात साबित नहीं। भाई अगर ये बात साबित नहीं तो इराक के अंदर करबला नहीं, करबला इराक से 72 किलोमीटर दूर है। हजरत हुसैन इब्ने अली करबला कैसे पहुंच गए कि आपने मुल्क शाम का रास्ता इख्तियार किया था। रास्ते में जब आप करबला पहुंचे, हजरत हुसैन इब्ने अली ने पूछा ये कौन सी जगह है? बताया गया ये करबला है। करबला किसको कहते हैं? करबो भला, मुशक्कतों की जगह, मुसीबतों की जगह। आपने उसी वक्त कहा हाँ हाँ ये हदीस खानवादे नबूवत में मशहूर थी कि इस उम्मत में हुसैन इब्ने अली को शहीद किया जाएगा, अल्लाह के महबूब के बाद आपको ज़िबा किया जाएगा। आप समझ गए कि लगता है यही है वो जगह, यहां मुझे शहीद कर दिया जाएगा। अभी ये काफिला मुल्क शाम की तरफ जाते हुए हुर बिन यजीद के साथ करबला की सरजमी तक पहुंचा था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद को भेजा। साद इब्न अबी वक्कास बड़े ऊंचे मुकदर्जे के सहाबी रसूल हैं, उनके दो बेटे उमर बिन साद, अमर बिन साद। उमर बिन साद ये लड़ने के लिए आया है हुसैन इब्ने अली से। अमर बिन साद यजीद का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। एक ही बाप के दो बेटे, एक किस तरफ एक किस तरफ। उमर बिन साद को ज़ियाद ने यह कहा कि अगर तू हुसैन इब्ने अली का मुकाबला करने जाएगा तो ईरान के शहर तेहरान की गवर्नरी तुझे दे दूंगा, और अगर तू इस मुकाबले पे ना गया तेरा घर गिरा दूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा। ये सारी रात चारपाई पे लेटा सोचता रहा कि तेहरान की गवर्नरी लो या हुसैन इब्ने अली का सर लो। सुबह को हिर्सो हवस ने फैसला किया कि मुझे तेहरान की गवर्नरी चाहिए, और सिपा सालार लेकर हजरत हुसैन इब्ने अली के मुकाबले के लिए सरजमीन करबला पे पहुंच गया। वहां आपस में बातचीत शुरू हो। आपने फरमाया क्या लोगों, मैं तो सियासी निजाम को दुरुस्त करने के लिए आया था,
अगर कूफे के लोग बदल चुके हैं, मैं वापस मक्कातुल मुकर्रमा चला जाता हूँ या मुल्क शाम जाकर यजीद से बात करता हूँ, आप किसी बात पे तो आए, कोई मुज़ाकरात पे तो आए। उमर बिन साद कहने लगा, आपने बड़ी जबरदस्त, मेरे दोस्तों यहाँ रुक के एक बात वाज़े करूं, ये बातें करना कोई हुसैन इब्ने अली की माअज़ल्लाह बुज़दिली नहीं थी। एक बंदा मुझे कहने लगा, आपने करबला का वाक़या तो बड़ा अच्छा बयान किया है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कहा तेरी समझ में नहीं आती तो ना आए, ये बात कोई बुज़दिली की वजह से नहीं थी, इस वजह से थी कि आप उम्मत में लड़ाई नहीं करवाना चाहते थे, आप उस नौबत तक नहीं ले जाना चाहते थे, इसलिए आखिर तक जहां तक हो सका आपने सारे मुज़ाकरात सामने रख दिए। लेकिन उमर बिन साद ने जब ये पैगाम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास पहुंचाया कि भाई ये 3 शर्तें हैं, इनको सामने रख लो, क्या करने। ज़ियाद कहने लगा, बात तो बड़ी अच्छी की उन्होंने, मानने नहीं चाहिए हमें, लेकिन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से भी बड़ा बदबख्त एक था जिसका नाम शिमर बिन दिलजोशन था। मेरे ख्याल में पूरे सानह करबला का अगर गौर से जायजा लिया जाए तो इससे बड़ा बेईमान, इससे बड़ा बेहया और कोई नहीं आया। सबसे बड़ा जालिम इंसान ये शिमर बिन दिलजोशन था। ये पास बैठा हुआ कहने लगा, नाना ऐसा ना करना कि दुश्मन पे जब काबू पालो तो उसको इख्तियारात नहीं दिया करते, बस इनको जबरदस्ती पकड़ के लाओ, इनसे कहो कि हम कोई शर्तों वाली सुलह नहीं करेंगे, माननी है तो मानो, नहीं मानी तो गिरफ्तार करके लाओ, गिरफ्तार ना हो जाए तो कत्ल कर दिया जाए। जब ये पैगाम करबला की सरजमीन पे पहुंचा है, हुसैन इब्ने नुमैर यजीदी फौज के सिपा सालार हुसैन इब्ने नुमैर, उमर बिन साद, हुर बिन यजीद जब आमना सामना हुआ और ये बात मैदान करबला तक पहुंची, हुर बिन यजीद की गैरत जाग उठी। आखिरी वक्त में उन यजीदी काफिले की सफों में से अपना घोड़ा दौड़ाया, हजरत हुसैन इब्ने अली के काफिले के अंदर पहुंच गए और जाके खड़े होके कहने लगे, है लोगों, मैंने अपने आप को जन्नत और जहन्नुम पे पेश किया कि अगर मैं मर गया तो मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नुम में जाऊंगा। तो मुझे समझ में आया यजीदी काफिला जहन्नुम में जाएगा, इसलिए मैंने इस काफिले को छोड़कर मैंने हुसैनी काफिले को चुना है। उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरी सिफारिश क़यामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करेंगे, तुम्हारी सिफारिश उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद करेगा, शिमर बिन दिलजोशन करेगा, यजीद करेगा। इसलिए हुर बिन यजीद घोड़ा दौड़ा के उस तरफ चले। देखें, इसको कहते हैं कि अल्लाह खातिमा ईमान पर दे दे, अल्लाह मौत ईमान पर दे दे। जिंदगी गुजरी थी सारी यजीदी काफिले के साथ, मौत का वक़्त आया तो हुसैनी काफिले में शिरकत हो गई, हुसैनी काफिले के साथ चले गए। आज जुमेरात 9 मुहर्रमुल हराम बरोज जुमेरात 61 हिजरी का थी कि आपने मोहलत मांगी कि आज एक रात का वक़्त दिया जाए ताकि हम अपने अल्लाह के साथ आहोजारी कर ले। रात का वक़्त मिला, रात के वक़्त में आप खेमे में तशरीफ लाए। सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबको मुखातब करके कहा कि ऐ लोगों, लड़ाई मेरे साथ है, तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं है। मैं तुम सबको इख्तियार देता हूं, जो जो जाना चाहता है वो चला जाए, मैं खुद ही इन्हीं के साथ निमट लूंगा। ऐ मुस्लिम बिन अकील के कुंबे वालों, तुम्हारी कुर्बानी बड़ी हो गई है, तुम भी वापस चले जाओ। लेकिन आपके अहले बैत कहने लगे, चचा जान, अगर कोई आम आदमी भी किसी चच्चे को मैदान में छोड़ आए, दुनिया उसे गैरतमंद नहीं समझती। हमारे चच्चे तो सारी दुनिया से बेहतरीन चचाए हैं, हमारे वो, ये तो नवासे रसूलुल्लाह है, ये तो शहजादे हैं। अगर आज हम आपको तन्हा छोड़ गए तो क़यामत के दिन जनाबे रसूलुल्लाह को क्या जवाब देंगे? हम आपके बाद जिंदगी नहीं चाहते, हम आपका साथ देंगे। आपके काफिले में एक थे सईद बिन अब्दुल्लाह अल हनफी, आप खड़े होके कहने लगे, जनाब आप ये कहते हो वापस चले जाओ, अल्लाह की कसम मैं आपकी उस वक्त तक हिफाजत करूंगा
जब तक मेरी जिंदगी में सांसें हैं, ये तो एक जान है, काश मेरी 1000 जानें होती, आज मैं हजारों जानें अहले बैत पे कुर्बान कर देता, मैं कुर्बान कर। सारी रात करबला की सरजमी पर ये काफिला क्या करता रहा, किताबें उठा के देखे, कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई कुरान की तिलावत में है, कोई अल्लाह के आगे हाथ उठा के रो रहे, कोई अल्लाह के सामने लगे हुए। अब हालांकि करबला की सरजमी पर सुबह जान के नजराने देने दौड़ो भाई, भागो भाई, परेशानी नहीं नहीं नहीं, मौत को सीने से लगाने के लिए। इसलिए जब ये काफिला कल अगले दिन जब फजर की नमाज के बाद सफे आमने सामने बनी, इधर यजीदी काफिला, इधर हुसैनी काफिला, आमना सामना हुआ। जुमे का वक्त कम होता है, अगर वक्त हो तो पूरी करबला की सरजमी का नक्शा खींच के दूं। जब ये दोनों आमने सामने हुए, इधर यजीदी काफिला, हुसैनी काफिला, गौर करने में बार बार क्यों कह रहा हूं, चेक करने जुमे का बयान सुन के कि मेरा आपका शुमार किस काफिले में है, कौन सी सिफात किन की थी, हम किन सिफात वाले हैं। हुसैनी काफिला रात भर तहज्जुद पढ़ने वाला था, नमाज पढ़ने वाला था। भंग चर्स शराब पीने वाले को हुसैनी काफिला नहीं कहते, भंग पीने वाला हुसैनी नहीं होता, शराब पे नाचने वाला हुसैनी नहीं होता, अल्लाह के सामने रोने वाला हुसैनी होता है। सारी रात रोए हैं, सुबह को फजर की नमाज के बाद आमना सामना हुआ। आपने फरमाया दाईं तरफ लश्कर मुरत्तब हो रहे, दाईं तरफ जुहैर बिन कैन, बाईं तरफ हबीब बिन मुजाहिर, बीच में अब्बास बिन अली, आलमदार जिन्हें कहते हैं अब्बास बिन अली, हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के बेटे, हुसैन इब्ने अली के भाई, परचम इनके हाथ है। इधर यजीदी काफिला, एक तरफ शिमर है, एक तरफ शिमर खड़ा हुआ है, एक तरफ अमर बिन अल हज्जाज जबीदी है, उमर बिन साद बीच में खड़ा हुआ है। इधर हुसैनी काफिला, इधर यजीदी काफिला, वो मुकाबले में 4000 से भी ज्यादा है। इनकी तादाद 72 के करीब है, ये सिर्फ 72 है, वो हजारों के मुकाबले में है। इनके 32 सवार हैं, 40 पैदल हैं, वो सारे के सारे ही सवार हैं। और जब आमना सामना होने लगा, हजरत हुसैन इब्ने अली अपनी सवारी पे बैठ के कुरान अपने सामने रखकर आप मैदान में आए। आपने कहा लोगों, मैं आखिरी वक्त में लड़ने से पहले तुम्हें समझाना चाहता हूं, अगर समझ आ जाए तो मान लेना, ना आए तो तुम्हारी मर्जी है। क्या खुतबा दिया, खुदा की कसम रुला देने वाला खुतबा था, पर पत्थर दिल लोगों पे कोई बात असर नहीं करती। आपने खुतबा दिया, आपने फरमाया लोगों, तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूं, मैं नवासे रसूलुल्लाह हूं, मैं फातिमा बिनते अली का शहजादा हूं, मैं अली और मुर्तजा का लख्ते जिगर हूं। और मेरे चचा जाफर को नहीं जानते, वो जाफर जुल्जुनाहैन है, 2 परों वाले हैं। मेरे चचा जाफर के 2 बाजू कटे थे, मेरे नबी ने फरमाया था जाफर जन्नत में कटे हुए बाजुओं के साथ मैंने उड़ते हुए देखा है। तुम जानते हो मेरे एक चचा का नाम हमजा है, जिसे अल्लाह के नबी ने कहा था असदुल्लाह व असदु रसूलिही। तुम जानते हो मैं कौन हूं, जिसको अल्लाह के नबी ने यह कहा था जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हुसैन इब्ने अली। तुम जानते हो मैं अल्लाह के नबी के कंधों पे खेला करता था, मैं महबूब अनवर के होंठों को चूमा करता था, मेरे नबी हमें गोद में लिया करते थे। और जालिमों, मुझे कत्ल करोगे, मुझे शहीद करोगे, वो अल्लाह के नबी की बेटियों के मुकाबलों में आओगे। आपने ये ऐसा खुतबा दिया कि वो चारों तरफ बैठे हुए कूफे वाले मुनाफिक, गद्दार, बेईमान लोग आंखों से आंसू तो बहा रहे थे, पर लड़ने के लिए, मुकाबले के लिए मैदान में नहीं आ रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। और आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की, ये शायद कम सुनी हो आपने फरमाया लोगों,
मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, जब से मैंने अपने नाना की जुबान से यह सुना कि झूठ बोलने से अल्लाह नाराज हो जाते हैं, मैंने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला, जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला। आपका ये खुतबा सुनकर शिमर बिन दिलजोशन सामने आया और कहने लगा, बस कर, तेरे खुतबे ने हमें थका दिया है। आपने देख के शिमर से कहा, सदकल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सच कहा। सहाबा कहने लगे, क्या सच कहा? आपने फरमाया, मेरे नाना ने मुझे बताया था एक चतकुबरा कुत्ता आएगा जो मेरे अहले बैत का खून चाटेगा। शिमर को फुलबेरी हो चुके, ये इसका रंग लाल, सफेद, काला, मुख्तलिफ रंग थे। इसको देख के आपने कहा, सच कहा था मेरे नबी ने, एक चतकुबरा आएगा जो मेरे अहले बैत का खून पिएगा। यही है वो शिमर बिन दिलजोशन जिसकी तरफ आपने इशारा की। ज़ुहैर बिन कैन आपकी सफ में से निकले, आपने बड़े दलेर आदमी थे। उन्होंने कहा, लोगों मैं आखिरी तंबीह करता हूँ, एक तरफ अहले बैत है, एक तरफ सुमैया का बेटा है, एक तरफ इब्ने मुरजाना का बेटा है, एक तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नवासा है। तुम किस तरफ जाते हो? अपना फैसला कर लो, कहीं बदबख्ती तुम्हारे मुकद्दर में ना आ जाए। ये शिमर फिर बोला, कहने लगा, बस कर, तूने कैसी गुफ्तगू शुरू कर दी है? अभी तुम मरने वाले हो, मरने वाले इतनी बातें नहीं सुनाया करते। आपने फरमाया, अबिल मौत तुखव्विफुनी, और कुत्ते इंसान तू मुझे मौत से डराता है कि हम मौत से डरते हैं। मौत को तो हम सीने से लगाना मोहब्बत समझते हैं, हम अहले बैत के साथ शहीद हो जाने को तुम जैसे बेईमानों के साथ जिंदा रहने से बेहतर समझते हैं। अहले बैत की शहादत हमें मंजूर है। आप पीछे आए सफ बनकर, लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई। उमर बिन साद ने तीर निकाला, सबसे पहला तीर हुसैनी काफिले पे चला के कहने लगा, और लोगों गवाह बन जाओ, सबसे पहला तीर मारने वाला मैं हूं, सबसे पहला तीर मारने वाला मैं हूं। लड़ाई शुरू हो, लंबी बात है, इसका मुताला करना। मैं बीच में 3-4 बातें जो खास इस करबला की आई वो सुना के बाद समेटता हूं, टाइम हो चुका। इस हुसैनी काफिले में सबसे पहले शहीद होने वाले मुस्लिम बिन औसज अल असदी हैं। इस हुसैनी काफिले के अंदर अहलुल बैत में से सबसे पहले शहीद होने वाले अली अकबर बिन हुसैन है। उधर से उनके काफिलों में से मरने वाला सबसे पहला सालिम और यसार है, यो जियाद और यजीद के गुलाम थे। अब ये देखना तरतीब, उबैदुल्लाह बिन जियाद का गुलाम सालिम, यसार मैदान में आए, लड़ाई होने लगी, अली अकबर बिन हुसैन आगे आने लगे। एक आदमी उबैदुल्लाह बिन उमैर अल कल्बी देहातों से उठ के आया था, अपनी बीवी उम्मे वहब साथ लेके आया था। फौरन मैदान में पहुंचा, कहने लगे, जनाब पीछे हटिए, मुझे मौका दीजिए, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कभी मैं अहले शिर्क के साथ तलवार उठाऊं, आज मेरी चाहत है कि मैं अहले बैत पे सबसे पहले कुर्बान होना चाहता हूं। उबैदुल्लाह बिन उमर अल कल्बी तलवार ली आगे बढ़े। आपने देखा कि जिस्म पे ज़िरा भी नहीं। आपने फरमाया कि भाई ज़िरा तो पहन लो। कहने लगे, हजरत ज़िरा पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तलवार उठाई, तलवार लेके मैदान में आए, सालिम पे ज़रब लगाई, यजीदी काफिले की पहली गर्दन उड़ाई, यसार पे चलाई, यसार को काम तमाम कर दिया। आप वापस आए, फिर मुठभेड़ शुरू हुई। आपकी बीवी उम्मे वहब डंडा लेके मैदान में पहुंच गई, अपने खाविद के साथ लड़ना शुरू कर दिया। हजरत हुसैन कह रहे, तू तो वापस चल। कहने लगी, नहीं नहीं, हम दोनों मियां बीवी हुसैनी काफिले पे कुर्बान होना चाहते हैं, हम दोनों मियां बीवी कुर्बान होना चाहते हैं। आपने कहा, नहीं नहीं, मैं खवातीन को लड़ने की इजाजत नहीं देता। उम्मे वहब को वापस भेज दिया। सबसे पहले आपकी तरफ से मुस्लिम बिन औसज अल असदी बाहर आए और यूं अल्लाह के नाम पे तलवार सीने पे लगी, जमीन पे गिरे।
आखिरी वक्त था। हबीब बिन मुजाहिर पास गए, कहने लगे काश मुझे पता होता, काश मुझे पता होता कि मैं तेरे बाद जिंदा रहूंगा तो मैं तुझसे पूछ लेता कि कोई वसीयत है तो कर दे ताकि मैं उस पर अमल करूं। उन्होंने आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ हाँ वसीयत है, इसी मैदान में पूरी हो सकती है। वसीयत क्या है कि अपनी जान दे देना पर हुसैन इब्ने अली का दिफा करना, ये मेरी वसीयत है। मैं जा रहा हूं अहलुल बैत की हिफाजत करना। मुस्लिम बिन औसज अल असदी शहीद हो गए। अहले बैत का मुकाबला आपका चलता रहा ज़ोहर की नमाज तक। तकरीबन अक्सरी काफिला अहले बैत का शहीद हो चुका था। अहले बैत के घराने में से कासिम बिन हसन, हसन इब्ने अली के बेटे बड़ी खूबसूरत थे। जब लड़ने के लिए करबला की सरजमी पे आए तो खुदा की कसम यूं महसूस होने लगा जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो। इतने खूबसूरत शहजादे ने जब तलवार उठा के लड़ने के लिए आगे बढ़े, एक बदबख्त आदमी ने कंधे पे वार किया, आप जमीन पे गिरे। गिरते हुए कहने लगे हाय मेरे चचा। ये आवाज निकली या अम्मा, हाय मेरे चचा। हजरत हुसैन इब्ने अली उठे और आगे बढ़ के कासिम बिन हसन के खूबसूरत कंधे को, जिस्म को अपने जसद पे सहारा दे के कहने लगे हाय मेरे भतीजे, तेरा चचा बड़ा ही बेबस हो चुके, तेरा चचा बड़ा ही बेबस हो चुका है, आज अपने भतीजे की मदद को नहीं आ सकता। आपके हाथों में कासिम बिन हसन दम दे गए, वही अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए। आपके बेटों में अली अकबर नारा लगाते हुए अना अली इब्नुल हुसैन इब्नु अली, मैं अली हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ, हुसैन अली के बेटे हैं, मैं अपने वालिद की दिफा करूंगा। आगे बढ़े लड़ने के लिए और अपने वालिद के सामने लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जोहर की नमाज का वक्त आया, करबला की सरजमी पर कितने कितने अल्लाह की राह पे कुर्बान हो रहे। जोहर की नमाज का वक्त आया, आपने कहा हबीब इनसे ये कहो कि हमें जोहर की नमाज पढ़ने दें। यजीदी काफिला क्या कह रहे? और मेरे दोस्तों नमाज की अहमियत सुनो। हुसैनी काफिला, यजीदी काफिला, जोहर की नमाज का वक्त हो चुका है। आज मेरा मुसलमान अहले बैत का नारा लगाकर अपनी दुकान नमाज के वक्त नहीं छोड़ता, अपनी महफिल नहीं छोड़ता, अपनी गपशप नहीं छोड़ता, अपनी यारियां मुलाकातें नहीं छोड़ता कि नमाज के लिए पढ़ी नहीं जाती, आया नहीं जाता, वक्त नहीं मिलता, दिल नहीं करता। क्या मुंह दिखाएंगे कयामत के दिन नवासे रसूलुल्लाह को? करबला की सरजमी पे शहीद हो रहे, कितनी शहादतें सामने पड़ी हैं, कितने लोग शादियों की वजह से नमाज छोड़ देते हैं, कितने बेचारे अपने फंक्शनों की वजह से नमाज छोड़ देते हैं। आओ करबला की हकीकत सुनो, हम जोहर की नमाज पढ़ेंगे। कौन है? जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, नबी के घर वाले हैं। हम अपने नाना की नमाज नहीं छोड़ेंगे, जोहर की नमाज पढ़ेंगे। शिमर कहने लगा तुम्हारी तो नमाज नहीं होती। जुहैर कहने लगे, हबीब बिन मुजाहिर कहने लगे लानत हो तुझ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, जिस घराने की बरकत से नमाज मिली है इनकी नमाज नहीं होती तो किन की नमाज होगी? उसकी नमाज नहीं होती जो नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, जो आले मोहम्मद पे दरूद न पढ़े उसकी नहीं होती। तो करबला में कह रहे कि इनकी नमाज नहीं होती। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत हो तेरे ऊपर। मेरे दोस्तों, दुनिया ने वो वक्त देखा कि तीर चल रहे हैं, तलवारें खड़क रही हैं, हुसैन इब्ने अली का सर सजदे में पड़ा हुआ है। हुसैनी काफिला करबला की सरजमी पे अल्लाह के सामने सर बसजदा है। पता नहीं किस चीज से वुजू किया होगा, पानी तो था नहीं, तयम्मुम किया होगा या अपने खून के साथ लथपथ हुए होंगे। और अल्लाह के सामने जब अल्लाहु अकबर कहा होगा
تو کیا تکبیر گونجی ہوگی کربلا کی سرزمین پر۔ یہ امت کو پیغام ہے کہ اے لوگوں، اگر نماز کہیں معاف ہوتی تو 14 صدیوں میں کربلا کی سرزمین پہ معاف ہو جاتی۔ نماز کی معافی نہیں ہے، حسینی قافلہ نماز نہیں چھوڑتا، یزیدی قافلہ نماز نہیں پڑھتا، پڑھنے والوں کو روکتا ہے۔ میرے دوستو، ظہر کی نماز پڑھ کے یہ قافلہ فارغ ہوا، آپ کے گھر میں اہل بیت شہید ہونے شروع ہو گئے، آپ کا قافلہ جا رہے، کتنی شہادتیں، ایک گھر سے ایک جنازہ اٹھے، آدمی سے برداشت نہیں ہوتا، شہادتوں پہ شہادتیں۔ 17 سے زائد اہل البیت تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ میں سوچتا رہتا ہوں صحابہ میں سب سے زیادہ مظلوم ہستی ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ خود شہید ہوئے، بیٹے حسن بن علی کو زہر دے دیا گیا، حضرت حسین بن علی کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ حسین بن علی، کربلا کے شہداء سنیں، حسین بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی، عبید اللہ بن علی، حسین بن علی، کتنی شہادتیں ہیں۔ حضرت حسین کے 2 بیٹے عبداللہ بن حسین بن علی، علی اکبر بن حسین بن علی، قاسم بن حسن، حضرت حسن کا بیٹا قاسم، قاسم بن حسن، محمد بن حسن، ابو بکر بن حسن، حضرت جعفر طیار کے پوتے عبداللہ بن جعفر طیار کے، اور محمد 2 بیٹے، مسلم بن عقیل کے 3 بھائی، یہ سب 17 کے 17 اہل البیت ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر قربان ہوتے چلے گئے۔ اب آخری وقت میں سیدنا حسین ابن علی تنے تنہا اکیلے کھڑے تھے کہ آخری وقت میں خیمے کے پاس آئے۔ خیمے کے پاس آ کر پتہ نہیں سوچا ہوگا کہ گھر والوں سے الوداعی ملاقات کرتے چلیں، خیمے کے پاس آئے۔ چھوٹا بیٹا عبداللہ بن حسین، حضرت حسین کا بیٹا عبداللہ بن حسین دودھ پیتا معصوم بچہ تھا، چھوٹے سے بیٹے کو اٹھایا اور یہ سوچا ہوگا کہ شمری فوج کتنی بھی بدبخت ہو، بچے پہ تو تیر نہیں چلائے گی، بچے پہ تو تلوار نہیں چلائے گی، یہ اسرائیل جیسی بے ایمان تو نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ نے عبداللہ بن حسین کو ہاتھ پہ اٹھایا اور اس کو قریب لے کے بوسہ لے رہے تھے، ابن موقد النار کوفہ میں ایک ایسا بے ایمان بدبخت انسان تھا، اس نے اپنا تیر سونتا اور تیر سونت کے جو مارا ہے اس معصوم بچے کے حلق سے باہر نکل۔ عبداللہ بن حسین، کربلا افسانہ نہیں ہے، کربلا قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ یہ صرف محرم الحرام میں رونے کا نہیں، پورا سال سوچنے کا ہے کہ کتنی بڑی قربانیاں میرے نبی کے گھرانے نے دی ہیں۔ ایک اتنے معصوم بچے کے حلق سے جب تیر پار نکلا ہوگا، 72 جان نثار پہلے ہو چکے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جب اس کے گلے سے تیر پار نکلا تو اس وقت جو حسین ابن علی کے ہاتھوں میں اس بچے کا خون آیا ہے تو خون ہاتھوں میں اٹھا کے کہتے ہیں، اے میرے مولا، اگر حسین کی یہ قربانی تجھے قبول ہے تو حسین راضی، اگر حسین کی یہ قربانی مولا تجھے قبول ہے تو حسین اس پہ بھی راضی ہے۔ اپنے اس معصوم بچے کی اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے اور اپنے بیٹے کو ایک طرف لٹا دی۔ اب میرے خیال میں آپ کو نہ بھی شہید کرتے تو آپ شہید تو ہو چکے، اتنے جنازے، اتنے نعشیں، اتنے شہداء، لیکن آپ کھڑے ہیں، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے، دشمن سامنے آ رہے، بپھرتے ہوئے شیر کی طرح مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں واقعی علی کی شجاعت نظر آ رہے، واقعی حضرت اللہ کے محبوب کی شجاعت جو حسین ابن علی میں تھی کہ اتنے 72 کے بعد بھی
कोई आदमी भला तलवार उठा के इतनी बड़ी फौज के सामने खड़ा हो सकते हैं? और फिर उन्होंने उधर से, अब सब रुक गए, कोई आगे नहीं बढ़ रहा। हर एक सोच रहे कि मैं कयामत अपने ऊपर क्यों लूं, मैं क्यों इन पे तलवार चलाऊं। पीछे से शिमर आके कहने लगा, और रुक क्यों गए हो, डर गए हो, घबरा गए हो, चलाओ तीर सब मुश्तरका तौर पर। सब ने मुश्तरका तीर चलाए, मेरे नबी के नवासे के सीने से पार निकल गए। एक ज़ुरआ बिन शरीक तमीमी ने आगे बढ़ के कंधे पे वार किया, कंधा कटा, जिस्म पे तलवार उतरी। सिनान बिन अनस नखई नेजा लेके आगे बढ़ा, आपके सीने पे नेजा रख के दबाया तो सीने से पार निकल। आप यूं जमीन पे गिरे और अल्लाह के सामने आहुजारी करते हुए दुनिया से तशरीफ ले गए। इधर से फिर यहां तक बदबख्ती की इंतहा देखें कि फिर कहने लगे, रुक क्यों गए हो, आगे बढ़ो। और सैयदना हुसैन इब्ने अली के उस गर्दन मुबारक पर जहां मेरे महबूब के बोसे लगते थे, जहां मेरे महबूब के होंठ लगते थे, जालिमों ने वहां तलवार चलाई और आपका सर मुबारक तन से जुदा कर दी। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास मक्कतुल मुकर्रमा में है, कूफा से 18 रातों का सफर है, ख्वाब में लेटे हुए थे। इधर करबला की सरजमी पे हुसैन इब्ने अली शहीद होते हैं। जुमा का दिन 41 हिजरी, आप यहाँ शहीद 61 हिजरी जुमातुल मुबारक 10 मुहर्रमुल हराम को आप शहीद होते हैं। उधर सरजमीन मक्का पर अब्दुल्ला बिन अब्बास ख्वाब देखते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, आपके हाथ में खून ही खून है। एक कारूरा, इमाम इब्ने कसीर ने यह बात लिखी है, आपके हाथ में एक बोतल है, खून से भरी हुई है। अल्लाह के महबूब ये क्या है? आपने फरमाया, ये मैं अपने नवासे का खून लेने के लिए आया हूं, कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में वकील बन के आऊं। उन बेईमानों का क्या बनेगा जिनके खिलाफ मुद्दई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के आएंगे। इसलिए खबरदार, अहलु सुन्ना वल जमात का मतलब यजीद की वकालत करना नहीं। हमें यजीद की वकालत करने से कोई सरोकार नहीं। बरसरे मिंबर ऐलानिया तौर पे कहते हैं यजीद फासिक था, फाजिर था, इस जुल्म और ज्यादती में भरपूर शामिल था। हमें उसकी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अहलुल बैत के हैं, अहले बैत की तरफ रहेंगे। जो जुल्म और सितम की दास्तानें यहाँ रकम हुई है, इसको पढ़ के तो सोचो, क्या इसको पढ़ने के बाद भी कोई कहेगा यजीद जन्नती है? किस तरह कहेंगे? इतना मेरे नबी का घराना ज़बा हो गया और तुम उसके लिए जन्नत साबित करते हो। किसी एक को भी सजा दी हो, किसी एक के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया हो, सिर्फ चंद झूठी मनगढ़ंत रिवायतें लेकर आज सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं 2 शहजादों की जंग थी, 2 शहजादे थे, एक यजीद था, एक हुसैन इब्ने अली थे, 2 शहजादे लड़ पड़े। ये शहजादों की लड़ाई नहीं, हक और बातिल की लड़ाई थी, इस्लाम और कुफर की लड़ाई थी, मेरे नबी की खिलाफत और मौरूसियत की लड़ाई थी। ये वाज़े अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ख्वाब देखा। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है, मैंने अल्लाह के महबूब को ख्वाब में देखा, आप बिल्कुल लथपथ थे, आपके सर पे मिट्टी है, हाथों में मिट्टी है, जिस्म अतहर पे मिट्टी है। अल्लाह के नबी क्या है? आपने फरमाया, अभी करबला की सरजमी से आ रहा हूं। जब ये काफिले हुसैनी कई महीनों बाद मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचता है, ख्वाब की तारीख महफूज कर ली जाती है। पूछा जाता है किस दिन शहीद किए गए? उन्होंने कहा 10 मुहर्रमुल हराम था। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, ऐन उसी वक्त जिस वक्त करबला की सरजमी पे हुसैन शहीद हो रहे थे, मुझे उसी वक्त ख्वाब आया, उसी वक्त ख्वाब आया। जब ये हुसैनी काफिला शहीद हो गया, आपकी बहन ज़ैनब बिनते अली, हुसैन इब्ने अली की बहन ज़ैनब बिनते अली
खेमे से दौड़ती हुई आई और आके कहने लगी, या मुहम्मदा, मरसिया कहा, हादा हुसैनुम बिल आरा मुजम्मिलुद्दिमा मुक़त्तउल आज़ा, या मुहम्मदा बनातुका सबाया ज़ुर्रियतुका मुक़त्तला। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबी का तर्जुमा मेरे पास नहीं है, अपने लफ्जों में समझाने के लिए कह रहा हूं। ए अल्लाह के महबूब, ये हुसैन है, अपने खून की मेहंदी रंगे हुए हैं, अपनी बोटियों का हार गले में पहना के डाले हुए हैं। ये तेरे नबी है, अल्लाह के नबी अहलुल बैत हैं, जिनको कफन भी नहीं दिया गया, जिनको शहीद करने के बाद मिट्टी को गैरत आई, मिट्टी उड़ी और हवा की शक्ल इख्तियार की और इनके सीनों पे फिरी कि चलो तुम्हें तो गैरत नहीं आती, मैं ही अहले बैत को कफन पहना देती हूं। अल्लाह के नबी, ये आपका मुबारक घराना है। मेरे दोस्तों, इन पे सवारियां दौड़ाई गई, इनकी नाशों की बेहुरमती की गई और इनका सर मुबारक उठा के उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में लाया गया। यहां बड़ी जबरदस्त बात इमाम इब्ने कसीर ने लिखी है। उन्होंने कहा, पानी चलाया गया, आपको पता नहीं चल, किसी को पता न चले कि किस अहले बैत की कब्र कहां है, किसकी कहां है। एक बनु असद का बूढ़ा देहाती आया, मट्टी उठा के सूंघता रहा, चेक करता रहा। जब हजरत हुसैन इब्ने अली के नाशे मुबारक के करीब गया, मट्टी उठा के कहने लगा, ए हुसैन, क्या कहने तेरी खुशबू के, दुनिया ने तो तुझे बड़ा छुपाया पर तू छुपने का नाम नहीं लेता। तेरी खुशबुएं बता रही हैं कि यहां कोई नवासे रसूलुल्लाह सोया हुआ है, यहां कोई सोया हुआ है। जब आपके सर मुबारक को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में लाया गया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने आपके होंठों पे छड़ी रख के कहने लगा, बड़े होंठ हैं, बड़ा शहजादा था, बड़ी खूबसूरती थी। अनस बिन मालिक और बाद रिवायतों में अबू बरजा अल अस्लमी, बाद रिवायतों में है हजरत अरकम रदी अल्लाह अन्हु खड़े होके कहने लगे, ओए बदबख्त आदमी, इन होंठों से छड़ी उठा, अल्लाह की कसम मैंने इन होंठों पे अल्लाह के महबूब के होंठ लगते हुए देखे, मैंने इन होंठों पे अल्लाह के महबूब के होंठ लगते हुए देखे। आखिरी बात करबला के सानहे की, माजरत चाहता हूं, वक्त ऊपर ले गया, वाकया बीच में रह जाए तो बात अधूरी रह जाती है। आखिरी बात, जब यह काफिला चलते चलाते मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचा तो मुस्लिम बिन अकील की बहन ज़ैनब बिनते अकील इस काफिले के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। इसने भी एक मरसिया कहा जो आपको सुना के इजाजत चाहता हूं। आखिरी मरसिया, जब यह काफिला हुसैनी मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हुआ है, मुझसे जब भी मैंने यह मरसिया पढ़ा है, खुदा की कसम मेरे दिल पे काबू नहीं हो सका। मैं पता नहीं तुम्हें किस पुख्तगी के साथ मिंबर पे बैठा बात कर रहा हूं। आपने ज़ैनब बिनते अकील ने इस हुसैनी काफिले को जब आते हुए देखा तो देख के कहने लगी, माज़ा तक़ूलून इन क़ाल नबिय्यु लकुम माज़ा फ़अल्तुम व अंतुम आखिरुल उममी बिइतरती व बिअहली बाद मुफ्तक़िदी मिनहुम उसारा व क़त्ला ज़ुर्रिजू बिदमी मा कान हाज़ा जज़ाई इज़ नसहतु लकुम अन तुख़लिफ़ूनी बिस्सूइन फ़ी ज़वी रहीमी। आप कहने लगे, और लोगों, तुम क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को क्या जवाब दोगे जब अल्लाह के नबी ये कहेंगे कि तुमने आखिरी उम्मत हो के क्या किया? तुम तो आखिरी उम्मत थे, तुम बेहतरीन उम्मत थे, और तुमने आखिरी उम्मत हो के क्या कर दिया? तुमने क्या किया मेरे जाने के बाद मेरे अहलो अयाल के साथ? किसी को कैदी बनाया, किसी को शहादत से लपेट दिया गया, किसी पे मिट्टी उड़ा दी गई। और तुम क्या कहोगे अल्लाह के नबी को जब अल्लाह के महबूब ये जुमले कहेंगे कि मैंने जो तुम्हारी इतनी खैर खाई की थी, तुम्हें इतनी जन्नत जहन्नुम समझाई थी, तुम्हें अल्लाह का दीन पहुंचाया था, इसका सिला ये तो नहीं था जो तुमने मेरे अहले बैत के साथ किया।
इसका बदला ये तो नहीं था कि तुमने मेरे अहले बैत के साथ जो सलूक किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं बोला हूं, आपने सुना है। आप सब हजरात आज के इस जुमे में नीयत करके जाओ, नीयत करके जाओ। अगर हुसैनी काफिला अपना सारा कुछ लौटा सकते हैं, खुदा की कसम मैं क्या, मेरे बच्चे क्या, अगर सारी उम्मत मुस्लिमा भी हुसैन इब्ने अली के खून के कतरे पे कुर्बान हो जाए तो खुदा की कसम तब भी आले रसूल का हक अदा नहीं कर सकते। चलो इतना तो हम करें इस इतने बड़े इज्तिमा में आए हुए कि आज के बाद हम अल्लाह के महबूब के दीन की खातिर कुर्बान हो जाएंगे, हुक्म इलाही नहीं तोड़ेंगे। सबसे बड़ा हुक्म जो मानेंगे कि हम आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। एक दफा मुझे खुश करने के लिए, अल्लाह को दिखाने के लिए हाथ खड़े करके नियत कर लो, आज के बाद हम इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ें। खड़े कर लो, अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबका आना कबूल करे। व आखिर दावाना।